Now suppose we have function y is equal to f of x, and this function is defined from set A to set B. There's a function y is equal to f of x, and it is defined from set A to set B. Switch on your cameras, everyone. A is said to be domain of the function because function में पूरा का पूरा A domain होगा, and B would be codomain. The entire function A will be domain and B would be codomain. First, we'll concentrate on domain of a function, how to find domain of different functions. We'll also plot graph of some functions and then get to know what is the range of the function as well. तो सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन लिखो. Domain of a function is set of values. Domain of a function is set of values of x. Domain of a function is set of values of x for which a function is defined. Domain is set of values of x for which function is defined. That means हम x की वही वैल्यू डाल सकते हैं जिसमें की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे फंक्शन नॉन डिफाइंड ना हो, राइट? And remember that we are dealing with real valued function. Real valued function का मतलब क्या हुआ? X and Y cannot be imaginary. Our entire focus would be on real valued function, that is X and Y cannot be imaginary. Iota नहीं आना चाहिए, complex नहीं आना चाहिए. तो वो x के values जिनको लेकर function defined हो, only those values will consider as domain of a function. Now there are different type of functions. You have function inside a root, you have logarithmic function, you have modulus function, greatest integer function, rational functions. So for different type of function, how to find domain? Type 1. Suppose you come across a function which is a rational function. That is something which is numerator divided by denominator. N over here stands for numerator, D is for denominator. See, the moment denominator becomes 0, you know that the function will be undefined. So for rational function, the rule will be that denominator of the function cannot be equal to 0. If you have a rational function, in order to find the domain of the function, rule will be that denominator cannot be equal to 0. So that will be the rule for these kind of functions. I'll give an example. Suppose we have a function f of x is equal to 2x plus 1 divided by x square minus 4. ठीक है? कोई function है which is f of x is equal to 2x plus 1 divided by x square minus 4. इसे रैशनल फंक्शन, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा? यू हैव द रूल विद यू. एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, और व्हेन यू टेक द रूट ऑफ बोथ द साइड्स इट विल बी x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2. मतलब x की वैल्यू ना तो 2 हो सकती है ना माइनस 2 हो सकती है. वैल्यू ऑफ x कैन नॉट बी प्लस माइनस 2, राइट? तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस माइनस 2. तो अगर तुम इसको नंबर लाइन पे करोगे, नंबर लाइन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हमें इसमें से 2 और माइनस 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये दोनों हट जाएंगे, एंड योर आंसर वुड बी ऑल नंबर्स एक्सेप्ट दीज 2. यस, यस का दूसरा तरीका ये हो सकता है r माइनस
and you have to use set because you are only excluding two numbers, -2 and 2. या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ to -2 union -2 to 2 union 2 to infinity. So that will be the domain of this function. हम्म। हाँ, तो -2 एक्सक्लूड हो गया, +2 एक्सक्लूड हो गया। कौन सा? ये। हाँ, तो -2 और 2 एक्सक्लूड हुआ ना, बाकी तो सारा होगा। क्यों नहीं होगा? यू कैन टेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 एंड -2। यू कैन टेक 1, यू कैन टेक 0, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस, सिर्फ -2 और 2 को हटाया मैंने, ठीक है। देखो, बाय मिस्टेक अगर तुमने इसको लिख दिया R- -((2 to 2) ये गलत होगा, बिकॉज में ये सारा एक्सक्लूड हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? ओपन इंटरवल, इफ यू हैव x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b, इट implies दैट एक x की वैल्यू a और b के बीच में है, ठीक है। x की वैल्यू a और, वेलकम चिराग। चिराग, अपना कैमरा ऑन कर लो। तो x की वैल्यू a और b के बीच में होगी, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। इफ आई से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करोगे, इल बी लाइक दिस। इन द क्लोज इंटरवल यू हैव टू इंक्लूड एंड पॉइंट्स एज वेल। लेकिन व्हेन यू राइट a, b, x बिलोंग्स टू सेट a, b, इसका मतलब क्या हुआ? इट स्ट्रिक्टली मीन्स x a है और x b है, ठीक है। तो इस आंसर में यू कैन नॉट राइट r माइनस ओपन इंटरवल -2 to 2 बिकॉज बीच के सारे नंबर्स हट जाएंगे वो। तो जब भी यू कम अक्रॉस ए फंक्शन विच इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, द सिंपल रूल इज दैट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इंटरवल्स। कोई डाउट है तो बेझिझक पूछ लेना। हमें यहाँ पे सिर्फ -2 और 2 को एक्सक्लूड करना था, तो नंबर लाइन में मैंने सर्कल बना दिया सिर्फ 2 और 2 पे, -2 पे। दैट इज दीज टू नंबर्स आर रूल्ड आउट, दे कांट बी द पार्ट ऑफ द डोमेन। तुम डाल के देखो, x को 2 डालोगे तो क्या आएगा? 5/0 विच इज नॉट डिफाइंड। x को -2 डालोगे तो आएगा -3/0 विच इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। इन दोनों नंबर्स के अलावा दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो दिस इज ओके। अविका, अदिति, अनुज, शनाया, तो ये हमारा रूल रहेगा। अब आई राइट फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस, एंड wherever I ask you that you plot graph also do that. Question number 1, f of x is equal to 2 divided by x into mod x minus 3. There's no hurry, take your own time, find the correct answer. इस वाले में हम डोमेन भी निकालेंगे, थर्ड का हम डोमेन भी, ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। फोर्थ का ग्राफ भी फाइंड करेंगे और डोमेन रेंज दोनों फाइंड करेंगे यूजिंग द ग्राफ। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से, टेक योर ओन टाइम। ऑल इट ऑल दीज आर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। रूल बड़ा सिंपल है, रूल क्या है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इट इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जो मैंने टिक मार्क किया है, tan एंड sec का ग्राफ भी बनाएंगे, फिर रेंज भी निकालेंगे ग्राफ से।
पहले फर्स्ट टू करो, उसको डिस्कस कर लेंगे पहले। राइट मेरा, you can write your answer in chat box as well. Denominator not equal to zero. पहले का क्या आंसर आ रहा है? क्यों, उसमें एक्स भी तो लिखा हुआ है। मैंने कहा जल्दबाजी मत करो, सब कुछ बोर्ड एक बार क्वेश्चन को समझो। डिनोमिनेटर क्या है इसका? इसका डिनोमिनेटर है एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड एक्स, मॉड एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज मॉड एक्स नॉट इक्वल टू थ्री। जब भी मॉड साइन हटाते हो तो प्लस माइनस आता है, राइट? तो एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, बिकॉज थ्री का भी मॉड माइनस प्लस थ्री होगा। यू सी, मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ये तुम्हें मालूम है ना सभी को, इसका ही बाद में ग्राफ करेंगे। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा अगर एक्स पॉजिटिव है, वही वापस आ जाएगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना, तो माइनस साइन बाहर लगा दोगे। जैसे अगर एक्स टू है तो टू का मॉड टू हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स माइनस टू है तो माइनस ऑफ माइनस टू मतलब प्लस टू बन जाएगा। तो जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? तीन वैल्यूज हट गई, जीरो हट गया, प्लस माइनस थ्री हट गया। कैसे लिखोगे? पहले का आंसर है आर माइनस सेट कंटेनिंग माइनस थ्री, जीरो एंड थ्री। दैट इज योर आंसर। Domain range, the interpretation of graph, very important for entrance. X लिखा हुआ है, दिखाई कम दे रहा है। सेकेंड पार्ट करो। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है हमें। राइट रैन, अर्शिया, ईरा, अविका, your answers are correct. मेरा आई वांट द ग्राफ ऑल्सो, थर्ड एंड फोर्थ का ग्राफ भी मेरे को चाहिए और ग्राफ से रेंज भी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द डिनोमिनेटर? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसको नॉट इक्वल टू जीरो करो, फैक्टराइज कर लो। एक्स कॉमन, एक्स माइनस टू, माइनस थ्री कॉमन, एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। जल्दबाजी करके आंसर गलत अगर हो गया तो जब 5 मार्क्स मिलने वाले थे वहां पे तुम्हें मिलेगा, अंडा भी नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल। अगर जीरो मिल जाए, अंडा मिल जाए, तो अंडे की ऑमलेट खा सकते हो, लेकिन वो भी नहीं होने वाला है, तो इसीलिए टेक योर ओन टाइम। एक्स इज नॉट टू एंड थ्री। मैंने कई बार बताया, जहां +4 मिलना था वहां -1 मिलता है, तो 5 मार्क का लॉस होता है। 5 मार्क मीन्स योर रैंक शिफ्ट बाय 1000। जो क्वेश्चन आंसर करना है उसको करेक्ट आंसर करना है। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू एंड थ्री। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? नेक्स्ट वाले में नीचे टैन आ रहा है ना? यू हैव, हाँ, टैन साइन बाय कॉस आ गया, ठीक है, नीचे कॉस आ रहा है। मैंने कुछ रिजल्ट्स में लिखवाए थे, मैं दोबारा एक बार लिखवा देता हूँ। साइन एन पाई हमेशा जीरो होता है। एन पाई का मतलब क्या हुआ? एन पाई का मतलब एक्स एक्सिस, या जीरो है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। द एक्स एक्सिस इज साइन एन पाई, एक्स एक्सिस पे साइन जीरो होता है, ठीक है।
जहां पे साइन जीरो होता है वहां पे कॉस की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस वन होती है। जहां पे साइन जीरो है वहां पे कॉस होगा प्लस माइनस वन, मतलब यहाँ कॉस वन या माइनस वन फिर माइनस वन, लाइक दैट। एन को जीरो डालोगे तो वन आ जाएगा, कॉस जीरो वन होता है। एन को वन सब्स्टिट्यूट किया कॉस पाई माइनस वन होता है। एन को टू सब्स्टिट्यूट किया कॉस टू पाई प्लस वन हो गया। थ्री सब्स्टिट्यूट किया माइनस वन हो गया। तीसरी बात, कॉस के ऑड मल्टीपल्स हमेशा जीरो होते हैं। टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन होता है ऑड नंबर। टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। टू एन इज इवन नंबर। तो ऑड नंबर हमेशा कहाँ पे आएगा? पाई बाय टू का मल्टीपल पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू, सेवन पाई बाय टू। तो ऑड मल्टीपल पाई बाय टू हमेशा वाई एक्सिस पे आएंगे। वाई एक्सिस पे कॉस हमेशा जीरो होता है, और जहां कॉस जीरो हुआ वहां पे साइन प्लस माइनस वन होना मांगता है, माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है, तो उसको प्लस कर लेते हैं, प्लस भी ऑड नंबर होता है, प्लस ले लो। ये चार रिजल्ट लिख लो कागज पे, काम आएंगे। ताबीज बना के गले में टांग लेना, बहुत काम आएगा, बहुत ट्रिगो में काम आएगा, हर जगह काम आएंगे चार रिजल्ट्स। राइट दम डाउन। टैन का हमें ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बेसिक आता है तुम लोगों को? आता है ना सबको? 11th में भी किया था, फिजिक्स में भी किया है, मैथ्स में भी किया है। अब थर्ड फंक्शन पे हम आते हैं। थर्ड फंक्शन इज tan x। tan x इज बेसिकली sin x बाय cos x। तो cos x इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब cos जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे। इसका मतलब x की वैल्यू टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन पाई बाय टू नहीं हो सकती। मेरा योर आंसर वॉज करेक्ट, बट इसको हमें जनरलाइज फॉर्म में लिखना है। 90, 270 और बढ़ता जाएगा, प्लस माइनस भी होगा। सो ये सारे वैल्यूज कॉस की पॉसिबल नहीं है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल वैल्यूज में से हमें सारी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू को माइनस करना है। ऐसे लिख दोगे इसको, टू एन माइनस वन पाई बाय टू लिख सकते हो, और आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू भी लिख सकते हो। मतलब हमने ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू को हटा दिया। ये सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इन वैल्यू पे क्या होगा? इन वैल्यूज पे कॉस जीरो हो जाएगा, साइन एक्स बाय जीरो, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब ग्राफिकली कैसे होगा? उन पॉइंट्स पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा या माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा, ये होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का हेल्प ले लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तुम्हें आइडिया देता हूँ थोड़ा सा, उससे ग्राफ प्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर हम tan x को डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है आदित्य? tan x का डेरिवेटिव? अनुज? यस। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक्स स्क्वायर एक्स। 11th में भी किया था तुम लोगों ने, याद नहीं है तुम्हें? तुम लोग अपने नाम भूल जाते हो कई बार, मैथ्स तो क्या याद होगा? सेक्स स्क्वायर एक्स। अब ये बताओ, सेक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? हर्षिया? पॉजिटिव। यस, इसे परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कहने का मतलब ये हमेशा मोर देन जीरो होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएट किया, इट इज कमिंग आउट टू बी मोर देन जीरो। इसका मतलब जब भी डेरिवेटिव मोर देन जीरो आता है, मतलब उस पूरे डोमेन में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज करेगा, एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई भी डिक्रीज करेगा, मतलब द रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई फंक्शन अपने पूरे डोमेन में नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ?
इस तरह से नीचे जाएगा ग्राफ। दूसरा तरीका है डिक्रीजिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का, यहाँ बैठो, सीधा पाताल लोक पहुंच जाओगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे पता करोगे? इंक्रीजिंग फंक्शन पता करने का तरीका है कि ग्राफ में तुम्हें क्लाइम करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा उसको। यू हैव टू क्लाइम ऑन द ग्राफ, मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इफ ए फंक्शन इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो या तो उसका डेरिवेटिव पूरे डोमेन में पॉजिटिव होगा या पूरे डोमेन में नेगेटिव होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव है जो कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स कैसा फंक्शन हुआ अपने डोमेन में? इंक्रीजिंग। मतलब टैन का जो ग्राफ है वो क्लाइम करेगा ऊपर की तरफ, ये हमें पता लग चुका है। इसमें कोई डाउट है किसी को? देविशी बोल रही समझ में नहीं आया। आ गया? तो अगर, हाँ, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है पूरे डोमेन में या डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। पॉजिटिव में ऊपर चढ़ेगा, नेगेटिव में नीचे जाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। अब हम टैन का ग्राफ बनाएंगे विद दिस इन्फो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम बाद में बहुत डिटेल में करने वाले हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले। किन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है ये एक तो पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, फिर 3 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, लेफ्ट साइड में -पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है, फिर -3 पाई बाय 2 पे भी डिफाइंड नहीं है। तो जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहां पे डॉटेड लाइन बना देता हूँ इस तरह से, बिकॉज यहाँ पे, हाँ, ये हो गया। थोड़ा और आगे बनाते हैं इसको। इन लाइन पे ये टच नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है? एक बार इतना बनाओ। ये यहाँ पे आएगा -पाई, यहाँ पे आएगा +पाई। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सिर्फ -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं फिलहाल। तो इतना तो हमें पता लग गया कि बेटा टैन का जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ने वाला ग्राफ बनेगा, और यहाँ टच नहीं करेगा, यहाँ टच नहीं करेगा। बट हमें मालूम है सबको कि भाई टैन का जो ग्राफ है, टैन जीरो कितना होता है? टैन जीरो इज जीरो, राइट? तो यहाँ से तो पास करना ही करना है उसको। थोड़ी और इन्फॉर्म लेते हैं। ये बताओ, हाँ, जीरो से पास करेगा। ये बताओ -पाई बाय 2 से जीरो कौन सा क्वाड्रेंट है? -पाई बाय 2 से जीरो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ जल्दी से। -पाई बाय 2 जीरो कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से दिस इज पाई सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर तुम ऐसे जाओगे, क्लॉकवाइज हमेशा एंगल नेगेटिव होता है। तो 0 से -पाई बाय 2 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन की कुंडली क्या बोलती है? टैन होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टैन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, लास्ट फोर्थ में नेगेटिव, ऑल साइन टैन कॉस। तो टैन हमेशा ऑपोजिट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और ऑपोजिट में नेगेटिव होता है। तो मतलब टैन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब टैन का ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव में, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? और 0 से पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव, वो यहाँ बनेगा। तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। ग्राफ को ऊपर चढ़ना है, इसको टच नहीं करना है। इट बी लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। बना लो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। tan इज अ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये रिपीट होता है। तो फिर वापस से सेम ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। tan पाई जीरो होता है, ये बन गया। सिमिलरली एक ग्राफ यहाँ बन जाएगा। इस तरह से ग्राफ रिपीट हो जाता है, इसे पीरियोडिक फंक्शन। और कितने डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है ग्राफ मेरा?
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? So pi. यस, इसीलिए इसका जो पीरियड है वो पाई है, बिकॉज रिपीट जब हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे बाद में, तो विल फाइंड आउट द पीरियड ऑफ ए फंक्शन। तो tan x का पीरियड पाई होता है। अब जरा देखो, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैं कंटिन्यूअसली बिना पेन को लिफ्ट के इसको ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है, बिकॉज यू कैन ड्रॉ इट इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ ए पेन। If you can plot graph of a function in a single stroke without lifting the pen, that function is said to be continuous function. ये continuous function है। तो tan x is a continuous function, its domain कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। हाँ, तो tan अपने डोमेन में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसे कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि बाद में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी हमें करनी है, तो इसे कंटिन्यूअस फंक्शन, इसे पीरियोडिक फंक्शन, इसका पीरियड पाई है। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब है वैल्यूज ऑफ y। तो मुझे बताओ कोई ऐसी वैल्यू है y की जो कि ग्राफ में नहीं आ रही है। ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर जीरो हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है, फिर इन्फिनिटी चला जाता है। मतलब टैन का रेंज क्या हो गया, वैल्यूज ऑफ y क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ टैन एक्स इज आर, लिख लो। रेंज इसका हो जाएगा आर, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रिमेंबर दैट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखना है, दे आर नॉट रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट है किसी को? अनुज, चिराग, समझ में आ रहा है चिराग? ओके, तो दिस वाज tan x। tan x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव से हमें पता लग चुका था, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। नेक्स्ट कौन सा दिया था मैंने स्केल अलावा? राइट, सेक बिट करते हैं ट्राई। सेक इज 1 by cos x। cos x नॉट इक्वल टू 0, x 2n-1 π/2। मतलब इसका हमें डोमेन मिल चुका है सेक का, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रिमेंबर दैट सेक और tan का सेम डोमेन है। क्यों है? बिकॉज दोनों π/2 पे, दोनों के बीच डिनोमिनेटर कॉस आ रहा है ना। सेक के डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, और tan के डिनोमिनेटर में सेक कॉस आ रहा है, तो दोनों का सेम डोमेन है। अब इसको ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे? तो नाउ वी नो दैट कि कहाँ कहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है। π/2 पे नहीं है, -π/2 पे नहीं है, और -3 पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं है। नहीं, तो जिन पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है वहां पे डॉटेड लाइन बना दो, बिकॉज द ग्राफ विल नॉट टच दीज। ग्राफ्स से कई बार बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, तो ग्राफ और उनका इंटरप्रिटेशन तुम्हें आना चाहिए। इतना हो चुका, बना लिया सब लोगों ने? मुझे ये बताओ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हम्म, 1 मिनिमम? -1। राइट, तो कॉस इज बिटवीन -1 and 1। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में बेस
कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। अब एक चीज बताओ, अगर किसी नंबर को तुम 1 को सपोज -1 और 1 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए? इफ यू डिवाइड, जीरो से तुम कर ही नहीं सकते, तुमने पहले ही हटा दिया है, जीरो तो हट चुका है। अगर मैं सपोज 1 को डिवाइड करूं बाय एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, सपोज मैंने लिया 0.1, तो क्या आंसर आएगा? 10। इफ आई टेक 0.0001 तो कितना आएगा? और बड़ा नंबर आएगा, है ना? तो whenever you divide a number by any number between -1 and 1 except 0, because 0 is not defined है, तो आंसर हमेशा या तो 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा हो गया। सपोज अगर ये नंबर नेगेटिव होता, -0.01, तो -100 आंसर आता। इससे तुम्हें क्या पता लग पा रहा है? इससे क्या पता लग पा रहा है कि सेक एक्स की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, 1 एंड -1 के बीच में कभी भी सेक एक्स नहीं आएगा। तो आई ड्रॉ अ लाइन वेयर एक 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और एक दूसरी लाइन -1 पे ड्रॉ कर दी। तो सेक का ग्राफ 1 एंड -1 के बीच में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक की वैल्यू -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 1 एंड -1 के बीच में कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज उसका रेसिप्रोकल 1 एंड -1 के बीच में है। तो मतलब सेक का ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्राफ आएगा नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। इस पॉइंट को समझने में किसी को डिफिकल्टी है? ग्राफ ऑफ सेक विल नॉट बी between 1 and -1, right? Well, let's concentrate on this part, -π/2 से π/2, ठीक है? कॉस की हम बात कर लेते हैं, कॉस या सेक, वही बात। ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? सेक की कुंडली ऑल साइन टैन कॉस। सेक या कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, है ना? सेकंड कॉस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब सेक की जो वैल्यू है, सेक 0 होगा 1, यहाँ पे आएगा ग्राफ, यहाँ पे टच नहीं करेगा, इधर टच नहीं करेगा, और ग्राफ सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। दूसरी बात, सेक का डेरिवेटिव किसी को पता है? डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टैन एक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, ठीक है, नो डाउट। व्हाट अबाउट टैन? अभी किया था तुम लोगों ने। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? नेगेटिव ना? नेगेटिव। टैन हमारा नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सेक डिक्रीज करेगा, मतलब विल स्लाइड डाउन, इसमें स्लाइड करना पड़ेगा। तो चलो स्लाइड के मजे ले लो, तुम लोग यहाँ तक आ गए, इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा ये, इट बी डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज उसको 1 पे तो रीच करना ही है, सेक 0 1 होता है। इस पे एनी डाउट प्लीज आस्क फ्रीली, एनी वन। देवेशी, अनुज, चिराग, आराध्य, शनाया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कॉन्सेंट्रेट किया था, कॉस पॉजिटिव था, टेन नेगेटिव था, डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। डेरिवेटिव जब भी नेगेटिव होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो सेक भी पॉजिटिव है और टैन भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग का मतलब, चलो पहाड़ पे चढ़ो। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया सेक एक्स का, -π/2 और π/2 के बीच में।
ठीक है रैन, रायन रैन क्या प्रोनाउंस यस। करते, कैसे बोल, रेयान। रेयान, ओके राइट। ये हमारा ग्राफ आ गया -π/2 से π/2 तक। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। इसको जरा देखो, नोटिस करो कौन सा क्वाड्रेंट है अभी ये। तुम अपने आप से बताओ मुझे क्या हो रहा है। पहले π/2, पहले बताओ कि सेक की वैल्यू क्या होगी π/2 से 3π/2 में। ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना। π/2 से पाई, π/2 से पाई, और फिर 3π/2। 3π/2 एंड -π/2 बेसिकली द सेम एंगल्स, राइट। अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव है। 3π/2 और -π/2 का कुछ नाम होता है ऐसे एंगल्स का, द एंगल्स विच रिप्रेजेंट द सेम एंगल, बट एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। क्या नाम है उसका, किसी को पता है? एनीवन? जैसे कि ये है पाई, है ना, ऐसे ही जाओगे तो कितना है ये, -π। तो माइनस ऑफ पाई और पाई भी सेम एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, एक नाम होता है। दिमाग पे जोर डालो, उनको बोलते हैं को टर्मिनस एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड को टर्मिनस एंगल्स। को टर्मिनस का मतलब दे आर टर्मिनेटिंग एट द सेम लाइन, को टर्मिनस। तो दीज आर कॉल्ड को टर्मिनस एंगल्स। तो π/2 से पाई और पाई से 3π/2 दोनों सेक एक्स नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ यहाँ पे आएगा। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया तुम्हें रिजल्ट, कॉस एन पाई इज -1 टू द पावर एन। तो कॉस पाई कितना हुआ, -1 की पावर 1, कॉस पाई मतलब -1। ये रिजल्ट याद कर लो, कॉस पाई -1 होता है, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे शुरू होगा -1 पे, ये ना -1, और ग्राफ नीचे आएगा नेगेटिव होगा, मतलब ग्राफ यहाँ पे कहीं आएगा यहाँ पे। π/2 से पाई पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट पे, π/2 से पाई। π/2 से पाई जरा देखो, π/2 से पाई, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्र है ना, तो सेक का डेरिवेटिव था सेक एक्स टैन एक्स। तो π/2 से पाई सेक क्या होता है, नेगेटिव। टैन क्या होता है, नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग, चढ़ाई करनी है भाई, पहाड़ पे चढ़ना है अब। फंक्शन है इंक्रीजिंग, चढ़ो, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा बिकॉज यहाँ नॉट डिफाइंड तक, कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक। इट बी लाइक दिस, क्लियर। और फिर पाई से 3π/2 में टैन पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग मतलब स्लाइड बन जाएगी, टैन पॉजिटिव सेक नेगेटिव। सो विल बी लाइक दिस, एंड द सेम ग्राफ वुड रिपीट ओवर हियर ऑल्सो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। ये है सेक एक्स का ग्राफ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सेक एक्स का ग्राफ -1 से 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो तुम्हें डोमेन पता लग चुका है। रेंज बताओ ग्राफ को देख के, फाइंड द रेंज यूजिंग द ग्राफ। रेंज का मतलब वैल्यूज ऑफ वाई, राइट। ग्राफ जो है -1 और 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। यस मिहिरा, राइट। ग्राफ -1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन वुड बी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1। -1 से 1 पूरा हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ -∞ to -1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 to ∞। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, 1 एंड -1 तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना।
-1 इंक्लूड कर लिया, 1 इंक्लूड कर लिया, या आर माइनस। अब ये पूरा हट चुका है, इसको अगर तुम नंबर लाइन पे देखोगे विल अपीयर लाइक दिस। -1 यू ड्रॉ सॉलिड सर्कल, इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है, यू ड्रॉ सॉलिड सर्कल, बीच वाला पार्ट हट चुका है। तो जो ब्लू लाइन जो तुम्हें नजर आ रही है वो है सारा आंसर। देख लो आराम से। ठीक है, टिल हियर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो? अनुज, चिराग, अदिति, ईरा, देवेशी, अर्शिया। इन दोनों का हम ग्राफ भी करेंगे। रूल वही है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। क्या रहा है इसका? रूल वही था हमारा पुराना वाला, x² + 6x + 12 के नॉट बी इक्वल टू 0। सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? किसी वैल्यू के लिए अगर वो 0 होता है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था, x² - 5x + 6 था ना,
तो ये किस वैल्यूज के लिए जीरो था? 2 के लिए जीरो था, 3 के लिए जीरो था, है ना? दैट मीन्स एट 2 and 3 द ग्राफ बेसिकली इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कोई अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जीरो हो रहा है, मतलब उन पॉइंट्स पे वो पॉलिनोमियल जीरो है, दोज आर सेड टू बी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे तो करेंगे। क्वाड्रेटिक हमेशा एक पैराबोला बनता है। दिस पैराबोला इज अपवर्ड ओपनिंग अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता है। तो ये पैराबोला, ये पॉलिनोमियल इस एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब वो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। रूट का मतलब ये होता है, तो इसके रूट दो थे, 2 and 3, वहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, मतलब वहां पे ये जीरो बन रहा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। इसकी अब बात करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? बिकॉज कोएफिशिएंट इसका +1 है, मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है ये भी। लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है? हम्म कितना आ रहा है? minus -12। मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। इट डज नॉट हैव ए रियल रूट। तो अगर इसका कोई रियल रूट नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ऑल। अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस। कहने का मतलब अगर इसका कोई रूट नहीं है तो ये कभी जीरो ही नहीं होगा। ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कभी जीरो नहीं होगा। तो जब ये कभी जीरो होगा ही नहीं बेचारा, तो एक्स की तो सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब इसका डोमेन आ गया ऑल रियल वैल्यूज। डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इसका डोमेन आ गया आर। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है उस क्वाड्रेटिक का हमने डी निकाल के देख लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? द अदर वे कुड बी किसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का प्रोसेस क्या है वो भी जरा समझ लो एक बार, काम आएगा इंटीग्रेशन में। 12th में 45 मार्क्स का कैलकुलस है तुम्हारा, उसमें इंटीग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम्हें आना चाहिए। जब भी किसी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 बना दो। द फर्स्ट स्टेप इज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर +1 by taking a common. Next step is identify कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको साइड में ले जाओ और चुपके से 2 से डिवाइड कर दो। जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद उसका स्क्वायर करो और इस इक्वेशन में ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ऐड क्यों करोगे? बिकॉज हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? बिकॉज वी डोंट वांट द चेंज द इक्वेशन। तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि वी डोंट चेंज इक्वेशन। तो ऐसा करने से जो पहली 3 टर्म है वो बन जाती है परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया? x+b/2a का होल स्क्वायर। बाकी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो बाद में एलसीएम वगैरह लेके, दैट इज देयर। लेकिन ये टर्म, पहली 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। एक काम करो, कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर। ट्राई दिस, कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। क्या मेहरा, तुम क्या कर रही हो बताओ? समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। सो कुछ बोला नहीं। अच्छा, कुछ लिखा है तुमने? सो वो तो आई थिंक प्रीवियस अच्छा क्वेश्चन का कुछ अच्छा, था। ईरा ने लिखा है, ईरा ने।
यस इरा बोलो। So I was saying कि is this method the completing the square method, मतलब जो ये हट गया था हमारे सिलेबस से? हाँ वही है वही है ये। वही है ना? Okay. हाँ ठीक है, ऑन टाइम आंसर, सही आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। -3x² + 9x - 1 का परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले -3 कॉमन ले लो, है ना। फर्स्ट यू टेक -3 कॉमन, दिस इज x² -3x + 1/3 होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देन आई सेड कि जो x है उसका, उसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। दिस वुड बी x² -3x + 3/2 का होल स्क्वायर, एंड वही सब्ट्रैक्ट करना है, +1/3। -3 आउट, पहली 3 टर्म बन जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 + 1/3। यहाँ पे तुम एलसीएम ले सकते हो, 12, दिस इज 27 -4। कितना आ रहा है ये आएगा। तो वी शुड नो दिस मेथड। अब एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर है वो x² + 6x + 12। कन्वर्ट दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर। x² + 6x + 12 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ऑलरेडी x² का कोएफिशिएंट 1 है। डन अभी का। यस सर। क्या आ रहा है? x+3 का होल स्क्वायर +3। ऑलराइट, शनाया हो गया। अब आराध्य, रैन हो गया। यस सर। ओके, x² + 6x, 6 को डिवाइड किया 2 से, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट 3 टर्म्स होल स्क्वायर हो गया, +3। सो ये जो डिनोमिनेटर था वो हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ऐसा हमने क्यों किया, उसका एक रीजन है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। दैट मीन्स x + 3 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर?
लेकिन यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो मैं दोनों साइड इन इक्वेशन में 3 ऐड कर देता हूँ। कहने का मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे किससे बड़ा हो गया, 3 से बड़ा है। इस रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा 3 से ग्रेटर है। तो अगर 3 से ग्रेटर है तो मतलब कभी जीरो होगा ही नहीं, तो कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज। तो दिस वाज द सेकंड मेथड, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर्स। हम्म। नहीं नहीं, ये 2 स्टेप में आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर, वो तो वहाँ करवा, वो अलग था, ये तो छोटा सा था। क्वाड्रेटिक में तो हम रिजल्ट सीख लेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। एनी क्वाड्रेटिक हैज मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 है, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा क्या है। किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4 होती है। हम क्वाड्रेटिक में पढ़ने वाले हैं बाद में ये। डी कितना निकाला था हम लोगों ने इसका, निकाला था ना, -12 किया था। 4 ए कितना है, +1, लो कर लो, बात आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। तो हमारे बहुत सारी रिजल्ट्स हैं डायरेक्ट, हम करेंगे, बट ये मेथड भी पता होना चाहिए हमें। तो इसका डोमेन हमें पता लग चुका है, थैंक यू वेरी मच। अब आ जाओ कॉट एक्स पे। कॉट का मुझे ग्राफ भी चाहिए, रेंज भी चाहिए। कॉट को लिखो कॉस बाय साइन। यू हैव 5 मिनट्स टू ट्राई योर सेल्फ, 5 to 7 minutes, करो ट्राई। सेम कॉन्सेप्ट, कहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा उन पे डॉटेड लाइन बना दो, ग्राफ से कर रहे हो ना, फिर वही कॉन्सेंट्रेट कर लो, इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग कहाँ पर है, सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, साइन 0 कब होता है, एन पाई पे ना, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, डोमेन आ गया। क्या डोमेन आया इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से भिड़ जाओ, भिड़ोगे तभी मैथ समझ में आएगी। अगर नहीं भिड़ोगे तो मैथ तुम्हें डरा देगी, डरना नहीं है।
तो 0 पे नॉट डिफाइंड है, पाई पे नॉट डिफाइंड है, 2 पाई पे नॉट डिफाइंड है। जब नॉट डिफाइंड है वहां पे डॉटेड लाइन बनाओ। Excuse me, sir. हाँ। So will the graph come out to be like opposite of tan, like direction reverse, ऐसा? हाँ, बिकॉज तुम कॉट का अगर डेरिवेटिव करोगे, याद रखो जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो डिफरेंशिएट करते हो ना, अगर उसमें सी आ रहा है, कॉट कॉस कोसेक, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो स्लाइडिंग डाउन होगा इसमें। ठीक है, इसका ग्राफ स्लाइडिंग डाउन बनेगा। तो अगर मैं कॉट को डिफरेंशिएट करूं, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो बेचारा कोसेक स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव साइन तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, तो स्लाइड करेगा। यहाँ पे ये टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो हमें इतना पता लग चुका है कि ये डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है ना, इट विल स्लाइड डाउन बिकॉज कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स नेगेटिव होता है। अब वही कहानी, ये माइनस पाई बाई टू यहाँ ले लेते हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो जरा। 0 से पाई बाई टू कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, तो अपना कॉट भी पॉजिटिव है, तो 0 से पाई बाई टू पॉजिटिव आएगा। पाई बाई टू से पाई कौन सा है क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कॉट क्या होगा? नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आएगा। और डिक्रीज करना है, कॉट पाई बाई टू 0 होता ही यहाँ से पास करेगा ग्राफ। डिक्रीज कर रहा है, स्लाइड बनानी है, मैं स्लाइड करो। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। ठीक है, एंड कॉट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, इट रिपीट इटसेल्फ। ये बेचारा रिपीट करता रहेगा, पीरियड भी तुम्हें देख के पता लग रहा है कितना है इसका। इसका पीरियड आएगा पाई, देखो पाई के बाद रिपीट कर रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स। इज इट कंटिन्यूअस ग्राफ? सिंगल स्ट्रोक में पूरा स्लाइड बन रहा है ना, नीचे से कंटिन्यूअस फंक्शन। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा? यस, इसका रेंज आ गया। हो गया, रेंज लिख लेना। नेक्स्ट कौन सा बचा है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स ट्राई करो, 5 मिनट्स है तुम्हारे पास। कोसेक एक्स इज 1/sin x। तो जैसे मैंने सेक एक्स करा था ना, उसी कॉन्सेप्ट पे होगा वो भी। पहले उसका डोमेन निकाल लो।
एन पाई होगा ना, तो साइन है, साइन जीरो एन पाई पे होता है, साइन एन पाई जीरो होता है। कॉट एंड कोसेक का तो सेम आएगा ना डोमेन, तो कोसेक इज वन बाई साइन एक्स, डेरिवेटिव कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। साइन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। साइन एन पाई जीरो होता है, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, डोमेन मिल चुका है हमें, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। तो ग्राफ बनाते हैं। जीरो पे डिफाइंड नहीं है, पाई पे डिफाइंड नहीं है, टू पाई पे डिफाइंड नहीं है, माइनस पाई पे डिफाइंड नहीं है, सिमिलरली माइनस टू पे भी डिफाइंड नहीं होगा। दूसरी बात, साइन की का जो रेंज है वो माइनस वन टू वन होता है, राइट। हाँ, साइन का रेंज माइनस वन टू वन होता है, मतलब कोसेक की वैल्यू वन से बड़ी होगी और माइनस वन से छोटी होगी, जो मैं अभी किया था ना सेक में, वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब ग्राफ ऑफ सेक कोसेक एक्स विल नॉट लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज, वन से छोटा नहीं होगा, माइनस वन से, तो वन और माइनस वन के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। करो अब ट्राई खुद से आगे। इफ यू वांट यू कैन concentrate on this part of this. कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में सी आता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो अब हो ये रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो जीरो से पाई बाय टू में ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन डिक्रीज करेगा, साइन पाई बाय टू सबको मालूम है वन होता है, तो कुसेक पाई बाय टू भी वन होगा, डिक्रीज का मतलब स्लाइड करेगा ऐसे। फिर सेकेंड क्वाड में कुसेक पॉजिटिव कॉट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जाए इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ऐसा बन जाएगा। इल बी सिमिलर ग्राफ व्हाट इट डिड इन सेक एक्स, सिर्फ ओरिजिन शिफ्ट हो गया, पाई से टू पाई में साइन तुम देखोगे पाई से टू पाई नेगेटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर, साइन पाई से टू पाई नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट बी लाइक दिस, यहाँ पे आएगा माइनस पाई से जीरो वापस नेगेटिव हो जाएगा,
फिर पॉजिटिव हो जाएगा. So it's also a periodic function like this. तो ये कहानी चलती रहेगी. तो हमें पता लग चुका है इसका भी रेंज वही आएगा. क्या आएगा इसका रेंज? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल. सेक एंड कुसेक का डोमेन्स, सॉरी, रेंज सेम होगा. R minus -1 to -1. The values will not exist between -1 to 1. ठीक है. एक बार गो थ्रू करो यहाँ तक जो किया हमने आज. उसमें एनी डाउट इफ यू हैव आस्क्ड मी. परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को +1 बनाओ. जैसे यहाँ पे -3 था तो पूरे में से -3 कॉमन ले लिया. x² -3x + 1/3. उसके बाद आइडेंटिफाई दिस कि x का कोएफिशिएंट कितना है. उसको 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दो. जो भी आएगा उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. तो जो ऐड करने से टर्म बनती है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. बाकी सिंपलीफाई कर लो. Question number 8 and 9. When you write x in the square bracket, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. राइट. तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर लेते हैं. The greatest integer function. The greatest integer function is represented by writing x in a square bracket. And it is always equals to the greatest integer not greater than x. ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन है. सेट ऑफ इंटीजर तो मैं मालूम है ना क्या होता है. दिस सेट ऑफ इंटीजर्स i से भी रिप्रेजेंट करते हैं, z से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा होगी द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x. जैसे कि मैंने लिखा 1.2. तो 1.2 को अगर तुम नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो 1.2 कहाँ पे होगा? बिटवीन 1 and 2, है ना? यहाँ पे कहीं. तो -2 भी इंटीजर 1.2 से छोटा है, -1 भी 1.2 से छोटा है, 0 भी 1.2 से छोटा है, 1 भी छोटा है, 2 इससे बड़ा हो जाता है. तो इसका आंसर होगा द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 1.2. वो इंटीजर बताओ, वो सबसे बड़ा इंटीजर जो 1.2 से बड़ा ना हो. तो वो इंटीजर कौन सा होगा? इमीडिएट लेफ्ट में जो आंसर आएगा. द आंसर वुड बी 1. तो किसी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू का
ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमेशा? इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दो तरह के नंबर होता है रियल में, जैसे एक तो होता है इंटीजर, ये सारे इंटीजर है, इनके अलावा सारे क्या होंगे? नॉन इंटीग्रल नंबर्स। 1.2, 1.33 -2.99, ऑल आर नॉन इंटीग्रल। तो जितने भी नॉन इंटीजर्स होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमेशा? इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट साइड। जैसे 1.2 का 1 हो गया। लेकिन अगर कोई इंटीजर है तो उसका आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 वुड बी 2, 2 ओनली। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 वुड बी -5 ओनली। इंटीजर का, बिकॉज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, तो -5 का -5 ही होगा, भी वो -5 -5 से बड़ा थोड़ी है। लेकिन नॉन इंटीग्रल में हमेशा आंसर आएगा, एक्स अगर नॉन इंटीजर है तो लेफ्ट साइड आंसर आएगा, अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स आंसर आएगा। दे रखा होगा ना एक्स की वैल्यू, बिना एक्स की वैल्यू से नहीं पता कर सकते। बिना एक्स वो भी करेंगे, पहले ये समझ लो। एक काम करो, कुछ मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो। एक्स को 0 लो, 0.2, 0.99, x1, 1.12, 1.5, 1.999, x is equal to 2. Find the corresponding greatest integer. वो बेसिकली y होगा, ठीक है। सारे निकाल लो। Find all corresponding greatest integers. There's no hurry, take your own time. These are the values of y. These are the values of y. ओके, रैन, मेरा। corresponding greatest integer निकालने के बाद प्लॉट भी करो इनको, ठीक है, ग्राफ भी प्लॉट कर लो। It is always integer on the left hand side. अभी का यो आंसर इज करेक्ट। लास्ट वाला कौन सा है? 3 का कितना होगा वो भी लिखो। ईरा, फाइन, चिराग, अनुज, आंसर चैट बॉक्स में लिखो अपना अपना। शनाया हो गया? क्या आंसर बताओ, बोलो। 0 कितनी बार आ रहा है? फिर 1 कितनी बार? ठीक है, 2 कितनी बार? और 3 कितनी बार? एक बार है बस। इट इज ऑलवेज इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सारे 0 हो गए है ना, इन सब का 0 होगा, इन सब का 1 हो जाएगा, इन सब का 2 होगा, एंड लास्ट वाले का 3 हो जाएगा। इट इज ऑलवेज इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ उसको प्लॉट करो। अर्शिया, तुम टेंशन में क्यों हो? नहीं सर, मैं चेक कर रही थी अपना। अच्छा ठीक है। यस सर। इट इज ऑलवेज इंटीजर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 2.99 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा होगा? 2 तो होगा, 3 कहाँ से आएगा? अब इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। लेट्स प्लॉट इट।
प्लॉट द ग्राफ। एक्स की वैल्यू पता है जो हमने ली थी, वाई जो आया है सॉल्व करके वो, और फिर प्लॉट करो। एक्स के वैल्यूज जब तुमने एक्स को पहली तीन वैल्यूज ली, पहली तीन वैल्यू में जीरो आ रहा है ना, एक्स की पहली तीन वैल्यू जो तुमने ली उसमें जीरो आ रहा है, तो ग्राफ में यस कैसे शुरू करोगे? अगर एक्स के लिए 0.9999 टाइम्स ही होगी तब भी इसका जीरो ही आएगा। हुआ? एक्स को जीरो लिया तो जीरो आ गया, एक्स को 0.1 लिया तब भी जीरो आ गया, एक्स को 0.5 लिया तब भी जीरो आ गया, एक्स को 0.99 लिया तब भी जीरो आ गया। बट द मोमेंट आई टेक एक्स को 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा जंप करके। कहने का मतलब एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और जीरो से बड़ी है, एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू इज जीरो और बट लेस देन 1, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है जीरो। जीरो पे सॉलिड सर्कल बना दो, इंक्लूड है, लेकिन 1 पे पहुंचते ही यहाँ जंप हो जाता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होगा? एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है या 2 से छोटी है तो सारा आंसर 1 आएगा। द मोमेंट एक्स इज 2, वापस जंप मार जाएगा ये। सो इट विल बी लाइक दिस, फिर जंप मार जाएगा तो विल गो लाइक दिस। सिमिलरली हियर, हियर ऑल्सो -1 पे, -1 पे -1 हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे आएगा। जैसे कि इफ आई आस्क यू व्हाट इज -0.5 का बताना, -0.5, -0.999, -0.1, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। यस, इट बी इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। सबका -1 पे आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है दिमाग में, नंबर लाइन बनाओ, उस पर मार्क कर लो। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सपोज आई हैव बिन गिवन सम नंबर विच इज से -2.4, ठीक है, तो -2.4 यहाँ पे कहीं आ रहा है, यहाँ पे है। तो -2.4 का कितना होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर? -3। यस, इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। लेफ्ट साइड कौन सा होता है? ये होता है, ये होता है। -2.4 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -3। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ड्रॉ करके कर लो। जैसे सपोज के कोई इंटीजर है ना, अगर के मान लो इंटीजर है, तो मैंने क्या बताया था, इंटीजर का क्या आंसर आएगा हमेशा? इंटीजर का आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। सपोज के इज सम इंटीजर, तो इंटीजर का आंसर इंटीजर आएगा। लेकिन मान लो तुमने के में कुछ ऐड कर दिया, एक छोटा सा नंबर एच ऐड कर दिया, एच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो अब टेल मी के प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? के, के। इंटीजर द इमीडिएट लेफ्ट, राइट। अगर तुमने के में से छोटा सा नंबर माइनस कर दिया तो फिर क्या आंसर आएगा? के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होगा? A-1। k-1। तो के माइनस एच के लेफ्ट में k-1 आ गया। अगर कोई नंबर इंटीजर के है तो राइट में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा हुआ? k+1। उसके लेफ्ट में कौन सा हुआ? k-1।
अगर k कोई इंटीजर है तो उसके नेक्स्ट वाला इंटीजर k+1, उससे छोटा वाला k-1, ये होता है। अब जरा बात बताओ मुझे कि जो इसका डोमेन क्या हुआ इस फंक्शन का, कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं x की नहीं ले सकता? आई कैन टेक ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज, x हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है ये। लेकिन is it a continuous function? Can I draw this graph in one single stroke of the pen? No. इतना ड्रॉ किया, फिर पेन को लिफ्ट किया, फिर इतना ड्रॉ किया, फिर पेन को लिफ्ट किया, फिर ड्रॉ किया, फिर पेन को लिफ्ट किया। इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है ये? इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज। लिख लो, greatest integer function, the greatest integer function is a discontinuous function at integral values. It's a discontinuous function at integral values. Integral value पे discontinuous है। 1 पे, 0 पे, -1 पे ब्रेक हो रहा है, वहीं ब्रेक हो रहा है। लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। यहां से यहां तक दो इंटीजर के बीच ही जितनी वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस है। 1 और 2 के बीच में जितनी वैल्यूज है सब पे आंसर आ रहा है, कंटिन्यूस ग्राफ आ रहा है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज एंड कंटिन्यूअस बिटवीन ऑन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। अब इसका रेंज क्या आएगा? कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? आंसर्स का 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कुछ भी ले लो, हमेशा आंसर क्या आएगा? इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या होगा? इंटीजर्स। तो डोमेन हो गया आर, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड इसका रेंज हो गया दिस। नहीं, लिख दिया मैंने। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, because it looks like steps. It is also called step function. So I'll see you on Saturday now. More functions, more graphs, plus और different functions करेंगे, log functions, exponential function, signum function, their graphs सारे डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, ending the class, see you next time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.